Savitribai on the occasion of Balika Divas. My mother told me about how the people threw stones at her for teaching girls, but still she went ahead and built a school for girls. She struggled a lot for us. All of those who do not know Savitribai must make an attempt to know her and her work. Today, she is the reason why we are getting to go to schools today, says 9-year-old Vibhavari Bagre, a Mumbai resident. Savitribai was born on 3rd January 1831 at Naigaon at Maharashtra's Satara district. She was the eldest daughter of Lakshmi and Khandoji Neveshe at Patil, both of whom belonged to a Mali community. At the age of 9, she married to a 13-year-old Jyotirao Phule. Savitribai was not educated at the time of her marriage, as she formed a backward caste and a woman. The dominant Brahmin class did not allow men from backward caste communities and a woman to get an education. Jyotirao Phule, better known as Jyotiba, for instance, was forced to leave school because of his caste. However, on the encouragement on the Persian scholar Ghaffar Beg, Munshi and British official Lizit Sahab, Jyotiba was enrolled in a Scottish missionary school, where he studied till class 7. It is important to understand the milieu of which the young Savitri grew up. Public education was yet to emerge, and that there were only few missionary schools that were open to all. Brahmins were the only caste group that received an education and could take a lead setting up schools. This is context in which Jyotirao at the age of 21 and Savitri 17 opened a school for women in 1848. It was the country's first school for women started by India. It is said that Savitri used to carry on extra saris while walking toward at her school, as people used to hurl stones and dunks at her. Apart from verbal abuse, the end of 1851, Phules were running three schools around 150 girl students. The teaching method of school were believed better than the government school. With these few words, I end my information. Thank you. Have a nice day. मेरा नाम नजीफा तनवीर अहमद बागलकोटे है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला का नाम महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई है। मेरे प्रिय शिक्षक और मेरे प्रिय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज देश की पहली महिला सावित्रीबाई फुले की जयंती है। मैं इस बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हूँ। आज 3 जनवरी का दिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हम सावित्रीबाई फुले की याद में मनाते हैं। सावित्रीबाई फुले 1831 को सातारा जिले में पैदा हुई। वह एक अहम शख्सियत मानी जाती थी। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 9 साल की आयु में उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ। ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ना सिखाया। वह पढ़ने में बहुत रुचि लेती थी। पढ़ने के बाद उन्होंने दूसरी कन्याओं को पढ़ाना शुरू किया। जब वो पढ़ाने जाती थी तब लोग उन्हें बहुत सताते थे, उन पर पत्थर गंदगी फेंकते थे। फिर भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। अपने
18 विद्यालय शुरू किए। 10 मार्च को वह अपने संसार से चली गईं, मगर आज भी सबके दिलों में अमर है। हमें इन संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने सावित्री बाई फुले के बारे में चंद ख्यालात का इजहार करना चाहूँगी। जिंदगी एक कांटों का सफर है। जिंदगी कांटों का सफर है। हौसला ही उसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। सावित्री बाई फुले, उनकी पैदाइश 3 जनवरी 1831 को सातारा जिले के नायगांव नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। सावित्री बाई के मां का नाम लक्ष्मीबाई था और उनके वालिद का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल था। सावित्री बाई 1840 को सावित्री बाई की शादी ज्योतिराव फुले के साथ हो गई। तब उनकी उम्र 9 साल और ज्योतिराव फुले की उम्र 13 साल थी। सावित्री बाई को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ज्योतिराव ने कहा, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। सावित्री बाई मुस्कुरा के कहा, क्या आप मुझे पढ़ना लिखना सिखाएंगे? क्या मैं भी आपकी तरह किताबें पढ़ सकूंगी? इसी तरह सावित्री बाई महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली मौलिमा बनी। अल्लाह हाफिज। Hello friends, on the occasion of Balika Divas, I want to tell something about India's first lady teacher, Savitri Bai Phule. Savitri Bai was an Indian social reformer, educationist and poet from Maharashtra. She is regarded as the first female teacher of India. Savitri Bai, born on 3rd January 1831 in a family of farmers in Naigaon village of Satara district of Maharashtra. At the age of 9 years, she was married to 13 years old Jyotirao Phule. Her husband was the one of the greatest social reformer of Maharashtra. In fact, it was Jyotirao who taught Savitri Bai to read and write. She was passionate about teaching and soon enrolled herself in a teachers training institution in Ahmednagar. Savitri Bai also received another teachers training course in Pune. She started teaching girls in Mahawada in Pune with Saguna Bai and Jyotirao mentor. Saguna Bai and Jyotirao start their school in Bhidewada. The curriculum of the school are based on Western education, including mathematics, science and social studies. With her close friend and colleague Fatima Begum Sheikh, Savitri Bai also started teaching women and children from downtrodden castes, including Mang and Mahar, who were considered untouchable. Savitri Bai died on 10 March 1897 battling plague. Thank you friends for listening my words on Savitri Bai Phule. Have a nice day. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद तौकीर तनवीर अहमद बागलकोटे। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी पाठशाला का नाम महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई है। आज 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में सावित्री बाई जी की याद में मनाया जाता है। मैं इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।
जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। सावित्रीबाई जी का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में एक किसान परिवार में हुआ। सन 1840 में केवल 9 साल की आयु में इनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले जी से हुआ। सावित्रीबाई पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय महिलाओं को शिक्षा देना पाप समझा जाता था। इसके बावजूद महात्मा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ना लिखना सिखाया। 1 जनवरी सन 1848 को महिलाओं के अध्ययन के लिए पुणे में उन्होंने पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई जब कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, तब वहाँ के लोग उन पर पत्थर, कीचड़, गंदगी, गोबर फेंका करते थे। फिर भी सावित्रीबाई ने अपना कार्य जारी रखा। केवल 4 साल में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 18 विद्यालय खोले। सन 1890 में उनके पति के देहांत के बाद उनके कार्य को संभाला। सावित्रीबाई ने काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर काव्य पुस्तकें भी लिखी। सन 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी फैल गई थी। मरीजों की सेवा करते करते वह भी प्लेग से पीड़ित हो गई। 10 मार्च को सावित्रीबाई जी का निधन हो गया। आज भी हम सब सावित्रीबाई को कोटि कोटि नमः करते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, ये तो आप सब लोग बखूबी जानते हैं। मैं सावित्रीबाई के बारे में आप लोगों को मालूमात देना चाहती हूँ। सावित्रीबाई की पैदाइश 3 जनवरी सन 1831 को सातारा जिला नायगांव में हुई। उनकी वालिदा का नाम लक्ष्मीबाई था और उनके वालिद का नाम खंडोजी नेलसे पाटिल था। वो बचपन ही से काफ़ी बेबाक थी। इन दिनों में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी थी। सन 1840 को सावित्रीबाई की शादी ज्योतिराव फुले के साथ हुई। ज्योतिबा ने लड़कियों की तालीम पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो तो पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। ज्योतिबा फुले ने पुणे में एक विद्यालय स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई ने लड़कियों को तालीम दी। लोग उन्हें बहुत सताते थे। जब वो रास्ते से जाते तब उन पर कीचड़ फेंका जाता था। इन्हें तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी, लेकिन सावित्रीबाई के कदम नहीं डगमगाए। इस अजीम हस्ती का इंतकाल 10 मार्च सन 1897 को हुआ। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आज हम अहद करते हैं कि तालीम हासिल करके हम उनके ख्वाबों को पूरा करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारे चंद अल्फाज सुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नवीद रिजवान कारीगर जमात 7वीं का तालिब इल्म हूँ। आज मैं सावित्रीबाई फुले से मुतालिक चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बगौर समात फरमाएंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सावित्रीबाई फुले की पैदाइश 3 जनवरी सन 1831 को हुई। उनकी वालिदा का नाम लक्ष्मीबाई और वालिद का नाम खंडोजी था। पहले ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। सावित्रीबाई के वालिद ने सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिबा फुले से करा दी। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती हैं, उस उम्र में सावित्रीबाई की शादी हो गई।
सावित्रीबाई अपने शौहर को सेठ जी कहते थे। शादी तक सावित्रीबाई को लिखना पढ़ना नहीं आता था। उनके शौहर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। सावित्रीबाई ने हैरानी से खुश होकर कहा कि सच में मुझे लिखना पढ़ना सिखाएंगे, कि मैं भी आपकी तरह किताबें पढ़ सकूंगी। उनके शौहर ने कहा हाँ, लेकिन सावित्रीबाई के वालिद इस बात से बहुत नाराज हुए कि ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई को लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। उनके वालिद ने कहा, ज्योतिबा तू बहू को लिखना पढ़ना क्यों सिखा रहा है? लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। भगवान ने जैसी जिंदगी दी है हमें वैसे ही जीने दो। लेकिन ज्योतिबा न माने तो उनके वालिद ने दोनों को घर से निकाल दिया। लेकिन फिर भी ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को लिखना पढ़ना सिखाना बंद नहीं किया। उनके एक दोस्त उस्मान शेख पूना में रहते थे। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले उनके घर गए। उनके दोस्त एक अच्छे और नेक इंसान थे। वो अपनी बहन फातिमा के साथ रहते थे। उन्होंने सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले को अपने घर में रहने की इजाज़त दी। फिर सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने उस्मान शेख के मदरसे 1 जनवरी सन 1848 को पूना में भीलवाड़ी में लड़कियों के लिए पहला मदरसा खोला, जिसमें साल की शुरुआत में सिर्फ 6 लड़कियां थीं और साल के आखिर में 50 थी। फातिमा शेख और सावित्रीबाई के ऊपर गंदगी फेंकना और इनकी मुखालिफत करने में लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। सावित्रीबाई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरी भारत की पहली मुअल्लिमा कहलाई। सन 1852 में मेजर कैनेडी के हाथों सावित्रीबाई और इनके शौहर का इस्तकबाल किया गया। सन 1897 को पूना में प्लेग नामी बीमारी फैली। सावित्रीबाई ने इन मरीजों को अपनी जान की परवाह किए बिना इनकी खिदमत की, लेकिन 10 मार्च सन 1897 को इसी बीमारी की वजह से सावित्रीबाई का इंतकाल हुआ। इस वजह से आज के दिन 3 जनवरी को बालिका दिन के तौर पर मनाया जाता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा हुसैन नारतवाड़ा है। मैं 7वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई है। मैं आज एक सरगर्मी पेश करने वाली हूँ जिसका नाम सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के एक नाई गांव में 1831 को हुआ था। उनके परिवार में सभी खेती करते थे। 9 साल की आयु में ही उनका विवाह 1840 में 12 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ। सावित्रीबाई और ज्योतिराव को 2 संतानें हैं, जिसमें से यशवंतराव को उन्होंने दस्तक लिया है, जो एक विधवा ब्राह्मण का बेटा था। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारतीय समाज सुधारक और कवयित्री थी। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने भारत में महिलाओं को अधिकारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने 1848 में पुणे में देश की पहली महिला स्कूल की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले जाति भेद, रंग भेद और लिंग भेद के सख्त विरोध में थी। Good morning all of you, respected teachers, principal and my dear friends. Assalamu alaikum. Today I am going to limit my speech on Savitribai Phule. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831 and died on 10 March 1897. She was an Indian social reformer, educationist and poet from Maharashtra. She is regarded as the first female teacher of India. Along with her husband, Jyotirao Phule, she played an important and vital role in improving women's rights in India. Thank you.